السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ گزشتہ وبرکاتہ. کئی شو میں وعلیکم ہمارے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاتے رہے یکے بعد دیگرے آپ کی علمی تشنگی کو بجھاتے رہے، اور آج بھی ہم سبوں کی کاوشوں سے الحمدللہ تین معزز نہیں بلکہ 4 معزز مہمان ہیں. انشاءاللہ نہ تو منقبت کے اشعار بھی سنیں گے، اور آج کے خصوصی مہمان ہمارے علامہ شاہ مفتی رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، فیض الباری بارہ بہار. اور ایک اور ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے حضرت قاری فیض احمد فیض صاحب قبلہ ممبرا مہاراشٹر سے، اور 2 معزز مداح ہمارے بزم میں مہمان کے حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں. حضرت محترم ذی وقار شاعر اہل سنت قاری رئیس کوثر جمالی صاحب گریڈی جھارکھنڈ، اور حضرت شاعر انقلاب محترم اختر کاشف صاحب قبلہ گریڈی جھارکھنڈ. میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ آپ نے آ کر کے زینت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر ثمرہ آپ کو مولا تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ اس آمین. بزم کا آغاز اللہ کے تقدس مآب کلام کے آفاقی پیغامات اور سرمدی نغمات کی لذتوں سے ہم اور آپ کر لیتے ہیں. میں اس کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ذی وقار جناب محترم قاری انعام الرب صاحب قبلہ سے کہ وہ اس بزم پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت سے فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. حضرات ناظرین کرام، ہماری اس بزم محبت کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے ہو چکا ہے، اور اس وقت ہمارے 2 معزز مہمان آن اسکرین ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی سب سے پہلے ہم سابقہ روایت پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم لوگ حاضری دیتے ہیں جناب ذی وقار شاعر اہل سنت قاری رئیس کوثر جمالی صاحب گریڈی جھارکھنڈ، اور ان سے ہم لوگ ملتمس ہیں
کہ وہ اپنی آواز کے سر میں نبی کے نعت کے مصروں کی آمیزش کو ہم سب تک کے پہنچائیں۔ میں بڑے محبت اور ادب احترام کے ساتھ میں حضور والا جناب محترم قبلہ قائد رئیس کوثر جمالی سے التماس کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ گزارش کروں گا سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیٹ ورک تو ادھر بہت پرابلم ہے، مگر دیکھتا ہوں میری آواز آپ کے تک پہنچ رہی صحیح سے کہ نہیں۔ ابھی اچھی آواز آ رہی ہے، آپ مل رہی ہے، آپ پڑھیں۔ بہت اچھی آواز مل رہی ہے؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں پر رحمت نئے و مہمان بارش فرما رہا کا ہے۔ میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں اور ہماری ٹیم کی جانب سے میں ویلکم کرتا ہوں قاری فائز احمد فائز صاحب قبلہ ماشاء ممبئی اللہ۔ سے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آمین۔ آمین۔ جی ارشاد اور ارشاد۔ اس بزم سے لوگوں کو اچھا پیغام ہو۔ میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں، آپ کا حکم ہے میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ، میرا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ، ذکر نبی کی باتیں سبحان اللہ۔ حسن تجلی سیرت قرآن، حسن تجلی سیرت قرآن، زلف نبی کی باتیں نہ پوچھو، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور مجسم تھا وہ یاسین، ختم رسل مت سود جہاں ہو، نور مجسم تھا وہ یاسین، ختم رسل مت سود جہاں ہو، رونق ہے قدم سے، رونق ہے بس ان کے قدم سے، چمکے ہوئے ذرات نہ پوچھو، چمکے ہوئے ذرات نہ پوچھو۔ نبی سب نبیوں سے ایک ارشاد ہو۔ سرور دیا شاہدینہ کر دو یا رحمت عالم، مدینہ کرو رحمت عالم، بس منگتوں کو بس تیرے کرم میں
कितना दिया सौगात पूछो अब नबियों से आला। माशाअल्लाह। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये थे हमारे शायर क्लासिकल जनाब मोहतरम ज़ी वक़ार कारी रईस कौसर जमाली साहब। यकीनन मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल के बाद इनकी आवाज़ की हलावत को हम सबों ने, उसकी खुश मैंने महसूस किया। और आज की तारीख में शायरी के जो रुमूज़ हैं, जो उसकी हदें हैं, अगर हम पुराने शोरा को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि आज हमने उसको पामाल कर दिया है। यकीनी तौर पर हमको वो अंधेरा ही सही था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हमें यह एहसास होता है जब हम पुराने शोरा को सुनते हैं कि नात में लज्जत कैसी मिलती है, नात में अकीदत में इजाफा कैसे होता है, नात से इंसान अपने कल्बी तमानियत को कैसे फराहम करता है, अपने जहनी उलझनों को कैसे दूर करता है। जब हम वाकई पुराने शोरा को सुनते हैं तो महसूस होता है कि शायरी नातिया अदब के हवाले से किस तरह से होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे मद्दाहों को उम्र खिद्र अता करे और हम सबों की दुआ इन सबों के हक में मौला कबूल फरमाए। हज़रात, आज के इस बज़्म का खास मौजू है रोज़ा और उसके जदीद मसाइल का हल। तो इंशाअल्लाह इस पे फर्दन हम बात करेंगे। और मैं तमाम शुरकाए बज़्म से एक गुजारिश कर रहा हूँ, बल्कि एक मशवरा तलब कर रहा हूँ कि बहुत सारे अहबाब के सवालात आते हैं और बीच में अगर सवाल का जवाब दिया जाए तो जो गुफ्तगू होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो जिस मेहमान को हम मौका दें, कम से कम उनसे 8 से 10 मिनट मुकम्मल उनकी बात सुने, फिर उस बीच में अगर सवाल 5-7 हो चुके हों तो बीच में 4-5 मिनट में उन सवालात के जवाबात भी दिए जाएं। बादू फिर इस तरीके से मेहमानों को बुलाया जाए। आपका जैसा मशवरा हो, मेरी ये राय है। बहरहाल अब मैं चाहूँगा कि रोज़ा और उसके जदीद मसाइल के हल के ताल्लुक से सबसे पहले हम और आप आइए हाज़िरी देते हैं। और मैं मदू करना चाहूँगा ज़ी वक़ार मोहतरम क़िबला कारी फैज़ अहमद फैज़ साहब, मुंबई महाराष्ट्र। मैं बड़े अदब के साथ हुज़ूर वाला से दरख्वास्त करूँगा कि अपने इल्मी मालूमात से हम सब की समातों के गुलशन में गुल खिलाकर हम सबों को बेहतर बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम मेहमानों हज़रत मुझे मिल किया। इस्लाम की हर इबादत अपने अंदर करीमाना शान रखती है, चाहे नमाज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो। किसी भी इबादत को देखेंगे तो तमाम इबादत के अंदर एक करीमाना शान, गुनाहगारों की बख्शिश का सामान में इबादत के अंदर एक नई करीमाना शान आपको नजर आएगी। इन दो, एक वो है कि जिसके पास मोहताज को चल कर जाना पड़ता है। करीम के एक किस्म वो है कि जिसके पास मोहताज को चल कर जाना पड़ता है, जैसे के बहुत ज्यादा करीब नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है। कारी फैज़ अहमद फैज़ साहब, नाज़रीन जो हैं तो वो बहुत टावर का इधर प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा करते हैं कि हम लोग जब तक कि कारी फैज़ साहब, कारी नाम साहब क़िबला, मैं अरीज़ा पेश करूँगा कि आप वो उनका सिस्टम जब तक कि आप ठीक कराइए कारी साहब का, तब तक आइए हम लोग आज के खासुल खास मेहमान जनाब ज़ी वक़ार अल्लामा मुफ्ती मुहिब रज़ा फैज़ी साहब क़िबला की बारगाह में चलते हैं। मगर उस बारगाह तक पहुंचाने के लिए मेरी बिसात नहीं है कि मैं आपको ले चलूं। अब उस बारगाह में पहुंचने के लिए हम सबों को एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूंगा ज़ी वक़ार मोहतरम अल्लामा फरीदी अमजदी साहब क़िबला से
کہ وہ حضرت کا تعارف نامہ بالاختصار پیش فرما کر ہم سبوں کو ان کی گفتگو کے قریب کریں۔ جی ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کافی دنوں سے ہم لوگوں کے درمیان کچھ ایسے نت نئے مسائل پیش کر رہے تھے جس کے جوابات ہم لوگ اپنی کم علمی کے باعث آپ حضرات تک مکمل تحقیق کے ساتھ نہیں پیش کر پا رہے تھے، کیونکہ روزے کے بہت سے ایسے جدید اور تحقیقی مسائل ہیں جو مفتیان کرام کے حصے میں جاتا ہے کہ وہ اپنی جدید تحقیق کو پیش کریں اور ناظرین کو تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ ہم لوگوں کے سامنے بہت سارے ایسے ہیرے جواہرات تھے، مگر ہم لوگوں نے ان ہیرے جواہرات میں سے ایک گوہر نایاب کو چننے کی کوشش کیا ہے، اور ایک گوہر نایاب کا انتخاب حضرت حافظ قاری انعام الرب رضوی صاحب قبلہ کی محنت شاقہ کہہ لیا جائے، اور ان کی بدولت آج ہماری اسکرین پہ نت نئے مسائل روزے کے تعلق سے جو روزے سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام تر مسائل کو لے کر کے ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ و مولانا مفتی محب رضا فیضی صاحب قبلہ دارالفتاء والقضاء نوادہ بہار، اور ساتھ ہی ساتھ مدرس بھی ہیں دارالعلوم فیض الباری نوادہ کے، میں ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ آپ اپنے وہ تمام تر مسائل جو اس وقت ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ روز مرہ میں پیش آنے والے وہ نت نئے مسائل کو آپ پیش فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو تشفی بخش جواب ملے اور اس سے وہ لوگ فائدہ بھی اٹھائیں، دوسروں تک بتائیں تاکہ وہ روزے کی تکمیل صحیح سے کر سکیں۔ میں مفتی صاحب سے عریضہ پیش کروں گا کہ آپ اپنی بات کا آغاز فرمائیں۔ جی اللہ کا شکر احسان ہے، فرمائیں عاقب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں صاحب بولیے خاص بات۔ میوٹ کر لیں مائک۔ والعاقبۃ للمتقین میں آپ کو 11 کے بعد فون کر رہا ہوں، ایک لائیو پروگرام میں ہم لوگ ہیں۔ مولانا محمد مہدی حسن صاحب آپ لائیو میوٹ کر دیں مائک کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں اپنے تمام اور گروپ کے جو خاص ممبران ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس فقیر کو آپ نے اپنے گروپ میں انوائٹ کیا اور کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور میں پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے محنت و مشقت کے خطرناک وادیوں سے گزر کر اس بزم کو عروج پر آپ نے بہت محنت و مشقت سے عروج پر لیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس نیک مشن کو کامیاب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آج جو ہمارے معاشرے میں روزے کے تعلق سے یا بے شمار مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ الجھے ہوئے ہیں، جہاں تک بات ہے قدیم مسائل کی تو قدیم مسائل فقہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، بے شک، اور قدیم مسائل آپ پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن رہ گئی بات جدید مسائل کی، تو نئے مسائل ایسا ہے کہ اس پر بڑی تحقیق ہوتی ہے، اور تحقیق کے لیے نہ جانے کتنی راتوں کی نیندیں قربان کر دینی پڑتی ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ جو قدیم مسائل ہے فقہ نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، لیکن جہاں جدید مسائل کی بات ہوتی ہے تو نہ جانے کتنی راتوں کی نیندیں قربان ہو جاتی ہے،
तब उलमा जाकर उस तह तक पहुंच पाते हैं कि कौन सा फैसला हमारे लिए बेहतर होगा शरई तरीके पर। आज हम कुछ मिनट आपकी बारगाह में गुफ्तगू करेंगे रोजे के जदीद मसाइल के ताल्लुक से। पहले मैं बहुत कम वक्त में अपनी मुख्तसर बात को समेट कर आपकी बारगाह में रख देना चाहूँगा। आज मुआशरे में एक पहले हंगामा बरपा है। आप अगर किन्हीं को पूछें कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है, तो सारे लोग कह देंगे, क्योंकि उलमा ने तो किताबों में लिख दिया है, यूट्यूब में मसाइल आप सुन लेते हैं कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता है, ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन जो लोग उलमा की बात में कर रहा हूँ, अगर उनसे कह दिया जाए कि इंजेक्शन से रोज़ा क्यों नहीं टूटता, तो हो सकता है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए तहकीक की बहुत ज़रूरत है। मैं मुद्दे पर आता हूँ। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है, पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये हकीकत है कि रोज़ा खाने, जानबूझकर खाने पीने और जिमा वगैरह से टूट जाता है। लेकिन इसके अलावा रोज़ा जिन चीज़ों से टूटता है उसको समझने के लिए फिक्र का कायदा कुलिया है, जिसे हमें और आप हर हाल में समझना पड़ेगा, ताकि जदीद मसाइल हमारी निगाहों के सामने हैं, उसको समझने में हमारे लिए और आपके लिए आसानी हो जाए। फिक्र का एक कायदा कुलिया है। आइए पहले इंजेक्शन पर हम बात करेंगे। इंजेक्शन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सारी चीजों से रोजा क्यों नहीं टूटता है? खाने पीने जेमा वगैरह से रोजा टूट जाता है, लेकिन इन सारी चीजों से रोजा क्यों नहीं टूटता है? फिक्र का एक कायदा कुलिया है कि इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से अगर कोई चीज उसके जिस्म में डाली जाए तो रोजा टूट जाएगा। उस रास्ता का नाम है मनफस। मर्द के जिस्म में 4 मनफस होते हैं और औरत के जिस्म में, औरतों के जिस्म में 5 मनफस होते हैं। इसको ख्याल रखिएगा, कायदा कुलिया ज़हन में रखिए। अगर आपने कायदा कुलिया को ज़हन में रख लिया तो आगे के जो नए मसाइल हैं आपको समझने में आसानी होगी। तो मर्द और औरत के जिस्म में कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए कोई चीज अगर उसके जिस्म में पहुंचाई जाए और वो चीज मैदा तक या दिमाग तक पहुंच जाए तो रोजा टूट जाएगा। और उस रास्ते को कहते हैं मनफस। अब मनफस हम किसे कहते हैं इसको समझना पहले जरूरी है। मर्द के जिस्म में 4 मनफस है और औरतों के जिस्म में 5 मनफस है। इसको समझिए। मर्द के जिस्म में मनफस क्या क्या है वो सुनिए। कान, नाक, मुंह और मर्द का पीछे का मकान, पैखाना का रास्ता। इन चारों रास्तों के जरिए मर्द के जिस्म में अगर कोई चीज पहुंचाई जाए तो रोजा टूट जाएगा। और ये यकीन के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर मनफस के जरिए कोई चीज अगर जिस्म में आप डाल रहे हैं तो चीजें मैदा तक भी पहुंच जाएगी और दिमाग तक भी चढ़ जाएगी। आगे मैं और भी बातें बताऊंगा। तो मर्द के अंदर 4 मनफस हैं, औरतों के अंदर 5। आवाज औरतों के अंदर मिल पा रही है, मुझको नेटवर्क सही ना होने की वजह से कारी साहब आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं फेसबुक में सिर्फ सुन रहा हूँ। ठीक, चलिए आप रुखसत पा सकते हैं। क्या करें, खड़ा रह करके? तो ठीक है, ठीक है। तो औरतों के जिस्म में 5 मनफज हैं। कान, नाक, मुंह और आगे का मकाम और पीछे का मकाम। अगर इन रास्तों से कोई दवा डाली गई या कोई चीज औरतों के जिस्म में डाली गई तो रोजा हर हाल में टूट जाएगा। अब देखें इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ाने से रोजा टूटता है कि नहीं।
हम इंजेक्शन को लेते, इंजेक्शन लगता कहाँ है? जिस्म में लगता है, गोश्त में लगता है, मसाम में लगता है। और फिक्र का कायदा कुल्लिया ये है कि अगर हम मनफज के जरिए कोई चीज जिस्म में दाखिल करें और वो चीज मैदा या दिमाग तक चली जाए तो रोजा टूट जाएगा। माशाअल्लाह, बेशक अच्छी मालूमाती गुफ्तगू के साथ क़िबला की हो रही है, मगर ज़रा सिस्टम के ख़राब होने की बुनियाद पर वो इस वक्त हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह हम करीब हाजिर होंगे। अहबाब और रोज़े के हवाले से जो सवालात कायम करना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, मेरी उससे दरख्वास्त है कि आप हज़रात अपने सवालात को तहरीर कर दें। और बहुत सारे अहबाब ने सलाम भेजा है, मैं इज्तिमाई तौर पर सबों की जानिब से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चूँकि आप बीच में तक जो है हाफिज व कारी फाइज साहब को वक्त दिया जाए, वो कुछ बोलें। वही जी जी जी, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कारी साहब, मुंबई से अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उनके पास नेटवर्क की जो दिक्कत है, इशू जो है, जी जी हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। सारे नाज़रीन की ख्वाहिश है कि मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए, हम सबों की ख्वाहिश है। आइए कारी साहब क़िबला से हम लोग फिर से हो लेते हैं और मैं गुजारिश करूँ कारी साहब आप फरमाएं। कारी फैज़ अहमद फैज़ साहब क़िबला। कल जो मसला आया था गुल के ताल्लुक से जी, कि गुल करने से रोजा टूटता है या नहीं। हेलो, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। अभी कारी फैज साहब क़िबला की आवाज साफ आ रही है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा मोहब्बतन कि आप थोड़ी सी इनकी गुफ्तगू हो जाए, उनके बाद आप फिर से शुरू करेंगे अपनी गुफ्तगू। अभी कारी फैज साहब क़िबला की आवाज आ रही है। जी ठीक जी, कारी फैज साहब आप बयान फरमाएं। जी आप बोलें कारी साहब। हाँ, तो रोजे के फयूज़ो बरक़ात मैं बयान कर रहा था जी, और बात चल रही थी कि इस्लाम की हर इबादत अपने अंदर करीमाना शान रखती है। बेशक जी, और करीम की दो किस्में हैं, एक वो जिसके पास मोहताज को चलकर जाना पड़ता है। मैं अर्ज कर रहा था जैसे प्यासे के लिए कुआं भी प्यासे की प्यास को बुझाता है, मगर प्यासे को करीम की दूसरी किस्म वो है कि मोहताज को उसके पास जाना नहीं पड़ता, बल्कि खुद मोहताज के घर आकर खैरात दे करके जाता है, जैसे प्यासे के लिए बादल। माशाअल्लाह। इस्लाम की हर इबादत करीम है, मगर इंसान को उसके मकाम तक जाना पड़ता है, वो आकर। जी, उनके साथ यही दिक्कतें हैं। आप मुफ्ती साहब क़िबला, गुजारिश है कि आप शुरू हो जाएं। ये नेटवर्क का जो इशू होता है, हमारे नाजरीन से मैं माजरत तलब करूंगा कि आप माफ फरमाएं। ये हमारी इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, इसमें ये ऊपर से होता है, ये नेटवर्क के इशू की वजह से होता है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। जी मुफ्ती साहब आप अच्छी बात बता रहे थे, आप शुरू हो जाएं। जी, तो मैं कह रहा था कि वो आ चुके हैं। नहीं, आप शुरू रहे हैं, आप जाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रोजे के जदीद मसाइल को समझने के लिए फिक्र का एक कायदा कुल्लिया है। अगर उसको हम और आप सही तरीके से समझ लिए तो आगे के जो नए मसाइल हैं उसको समझने में हमारे लिए निहायत ही आसान हो जाएगा। जी, वो ये है कि इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे रास्ते हैं, खाने पीने जिमा के अलावा भी रोजा टूट जाता है। इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि फिक्र का कायदा कुल्लिया क्या है। इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए इंसान के जिस्म में कोई चीज डाली जाए तो रोजा टूट जाता है। और वो रास्ता मर्द के अंदर 4 रास्ते हैं
और औरतों के अंदर 5 रास्ते हैं। मर्द के अंदर जो रास्ते हैं वो कान, नाक, मुंह और पीछे का मकाम। औरतों के अंदर जो रास्ते हैं कान, नाक, मुंह, पीछे और आगे का मकाम। इन रास्तों के जरिए अगर जिस्म में कोई चीज डाली जाए तो रोजा हर हाल में टूट जाएगा। और आप ये भी यकीन रखें कि इन रास्तों से कोई चीज अगर आप जिस्म में डाल रहे हैं तो माहिरीन कहते हैं कि वो चीज हर हाल में मैदा में या दिमाग तक पहुंच जाएगी, और उन रास्तों को मनफस कहते हैं। अब समझ लीजिए, हम इंजेक्शन देते हैं या डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं, ये फिक्र का मैंने कायदा कुल्लिया बताया। इन्हीं 5 रास्ते, इन्हीं 4 जरियों से अगर कोई चीज जिस्म में जाएगी तो रोजा हर हाल में टूट जाएगा। अब इंजेक्शन पर आइए। इंजेक्शन जब डॉक्टर लगवाता है तो इंजेक्शन ना नाक से जाता है, ना मुंह से, ना कान से, न पीछे का मकाम से। हाँ, अगर आप मनफज के जरिए कोई दवा जिस्म में डाल रहे हैं तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन इंजेक्शन 2 जगहों पर लगता है, एक गोश्त पर, एक रग पर। गैर मनफज में इंजेक्शन लग रहा है, उसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा। अब कुछ लोगों का इख्तलाफ है कि इंजेक्शन जब जिस्म में जाता है तो रोजा क्यों नहीं टूटेगा। तो उन इख्तलाफ करने वालों के लिए इस फकीर के पास जवाब ये है कि माहिरीन की तहकीक पर इस फकीर की तहकीक है कि माहिरीन कहते हैं, कुछ लोगों ने जब एतराज किया कि इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जिस्म में जा रहा है। तो माहिरीन कहते हैं कि इंजेक्शन गैर मनफज के जरिए जिस्म में जा रहा, रोजा नहीं टूटना चाहिए। अगर इंजेक्शन जिस्म में जाने से, गैर मनफज के जरिए जिस्म में जाने से रोजा टूट रहा है तो बहुत सारी मिसालें हमारे पास है, आपको बताते हैं। मसाम के जरिए हम इंजेक्शन जिस्म में डालते हैं। मसाम उसको कहते हैं जिस बारीक सुराख से जिस्म से पसीना निकलता है। माहिरीन कहते हैं कि हम जो गुस्ल करते हैं तो गुस्ल का जो पानी है वो जिस्म में मसाम के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो क्या गुस्ल करने से भी रोजा टूट जाएगा? ऐसा नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इंजेक्शन से रोजा टूट जाएगा तो हम और आप जो तेल मालिश करते हैं वो तेल भी मसाम के जरिए, सुराख के जरिए जिस्म में जाता है। तो क्या तेल लगाने से भी रोजा टूट जाएगा? तो नहीं, रोजा नहीं टूटेगा। इसलिए कि इंजेक्शन गैर मनफज के जरिए जिस्म में जा रहा है तो रोजा नहीं टूटेगा। अब कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि रग में हम इंजेक्शन लगाते हैं, उससे रोजा टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? मैं उन इख्तलाफ करने वालों को भी जवाब देना चाहता हूं। जब माहिरीन ने तहकीक की और तहकीक करने के बाद हमने भी तहकीक की, माहिरीन की तहकीक पर अपनी तहकीक को रखा, तो पता चला कि रग का जो कनेक्शन होता है, जिसमें जो रग का कनेक्शन होता है वो दिल से होता है। और हम जब रग में इंजेक्शन लगाते हैं तो दवा खून के साथ पूरे जिस्म में दौड़ती है, रगों में। अब रग का कनेक्शन कहाँ है? तो आप पढ़ें माहिरीन की तहकीक को तो आपको पता सीधा और बात कनेक्शन मनफज में है ही नहीं। दिल के बाद कोई मनफज ही नहीं जो दिमाग या पेट में कोई चीज चढ़ जाए। तो दिल तक वो दवा गई, फिर रग में आ गई, फिर दिल तक गई, फिर रग में आ गई। यानी वो दवा दिमाग या मैदा में नहीं जाती है, इसीलिए रग में भी इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। हालत रोजा में अगर आपको वाकई जरूरत हो तो हालत रोजा में इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इंजेक्शन गैर मनफज के जरिए जिस्म में जा रहा है। हालत रोजा में अगर वाकई आपको जरूरत हो तो आप खून भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए खून भी जिस्म में जाएगा तो गैर मनफज के जरिए जाएगा। अगर वाकई आपको जरूरत हो तो हालत रोजा में ग्लूकोज भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिक्र का कायदा कुल्लिया है कि मनफज के जरिए अगर जिस्म में कोई चीज जाए तभी रोजा टूटेगा, और हम ग्लूकोज जो चढ़ाते हैं वो मनफज के जरिए जिस्म में
नहीं जाता है तो रोजा किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। हाँ, एक और मैं बारीकी बयान कर देना चाहता हूं। मनफज जो 4 हैं मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर 5 है, इनके जरिए कोई चीज डाली जाए जिसमें तो रोजा टूट जाएगा। इनके अलावा 2 सूरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से रोजा टूट जाएगा, इसका ध्यान में रखिएगा। 2 सूरतें हैं, और वो कौन सी सूरतें हैं ये भी ध्यान में रखिए आप। अगर दिमाग में इतना गहरा जख्म लग गया और वो जख्म दिमाग तक है, अगर हम दिमाग में कोई दवा वगैरह डाल देंगे तो वो दवा दिमाग तक पहुंच सकती है। अगर दिमाग में वाकई कोई ऐसा गहरा जख्म है और दवा हम डाल दिए, वो दवा दिमाग तक पहुंच गई, तब तो रोजा टूट जाएगा जी। दूसरी सूरत है कि पेट में इतना गहरा जख्म है कि अगर पेट के में अगर हम दवा डाल रहे हैं और दवा पेट तक, मैदा तक पहुंच जाए तो रोजा टूट जाएगा। गैर मनफज के जरिए जो रोजा टूटने की जो सूरतें हैं, सिर्फ 2 सूरतें हैं कि दिमाग में चाहे इतना गहरा जख्म हो या फिर मैदा में इतना गहरा जख्म हो, जो दवा वहां तक पहुंच जाए, तब रोजा टूट जाएगा। फिक्र के इसी कायदा कुल्लिया को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी सारे मसाइल समझने में। हालत रोजा में इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, अगर वाकई जरूरत हो तो ग्लूकोज भी आप चढ़ा सकते हैं, खून भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, हालत रोजा में। और किसी को अगर सवाल करना हो तो कर सकते हैं, या और मैं अपनी बात रखूं? बात रखें, जारी रखें मुफ्ती साहब। हाँ, तो गैर मनफज के जरिए जिसमें कोई चीज जाए तो रोजा किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था, मैं कुछ जवाब लेके आया हूं। मैं कुछ दिनों में, 1-2 दिन में सोशल मीडिया पर अपनी इस तहरीर को छाऊंगा। कुछ लोगों ने कहा था कि किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटेगा, तो मैंने उसको लिखा था कि हालत रोजा में इंजेक्शन लेना, ग्लूकोज चढ़ाना, आंख में दवा डालना, चूंकि आंख भी गैर मनफज से, ख्याल रखिएगा, आंख में दवा डालना, खून टेस्ट कराना या चढ़ाना, दांतों की सफाई कराना, जिसमें इलाज के लिए पाइप डालना, ऑक्सीजन मास्क लगाना, ऑपरेशन करवाना, जख्म पर मरहम लगाना, बाम वैसिन क्रीम इत्र तेल लगाना, फुल सूंघना, बाल कटवाना या मुंडना, बच्चे को दूध पिलाना। कुछ लोग, औरतें हमारी सवाल करती है कि बच्चों को दूध पिलाना कैसा है। तो जिसमें से कोई चीज निकल जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, जिसमें जब कोई चीज चली जाए तब रोजा आपको टूटेगा। उल्टी के ताल्लुक से कुछ लोग कै के ताल्लुक से सवाल करते हैं, इसका भी यही मामला है। तो बच्चों को दूध पिलाना, नीम या कोई भी कड़वी लकड़ी से मिसवाक करना। हाँ, कुछ लोग मिसवाक के ताल्लुक से पूछ रहे थे कि हमारे भाइयों में कि मिसवाक हम किन लकड़ियों से करें। तो मिसवाक आप हर लकड़ी से कर सकते हैं सिवाय बांस के, बाकी हर लकड़ी से कर सकते हैं। एक अहम सवाल और, हमारे जो नौजवान मुफ्ती साहब जी, बहुत अच्छी बात रखी है आपने। वो बांस की जो ममानियत है, उसकी हिकमत अगर कुछ हो उस तरह से तो ऐसा है हुजूर, अभी तक मैंने बांस के ताल्लुक से तहकीक नहीं किया है। मसला तो ध्यान में है, लेकिन इस पर हमारी अभी तक तहकीक नहीं है। इस पर हम तहकीक करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। जी, बहुत अच्छी बात नाज़रीन तक जा रही है, माशाअल्लाह। जी फरमाएं, हाँ, रखें। हाँ, अब हमारे नौजवान तबका में हालत रोजा में कुछ लोग, हालत रोजा में कुछ हमारे भाई लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। मेहदी हसन साहब को मैंने इसलिए म्यूट कर दिया, एक सेकंड। मेहदी हसन साहब को मैंने इसलिए हेलो हेलो जी, आवाज आ रही? बोले कारी साहब, आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी जी। वो मेहदी हसन साहब के आने से कुछ आवाज में कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है, तो इसलिए मैंने उनको रिमूव कर दिया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा फिर से वो तशरीफ लाएं। जी। कुछ हमारे नौजवान लोग हालत रोजा में लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, जी, ताश, शतरंज वगैरह सब बहुत जरूरी था हुजूर। हाँ, हमारे मुंह की, हमारी जुबान की बातें आपने छीन ली है। इस पर बहुत जरूरी है। हमारे नौजवानों को इस वक्त क्या चाहिए वो हम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
हमारे नौजवान इस वक्त मैंने देखा है बहुत सारा, कल भी एक सवाल आया था कि लूडो खेलना कैसा है, तो आप लूडो ही नहीं इस किस्म की सारी चीजें, इस किस्म के जितने लहू लईब के सामान और आलात हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आप जी मैं वही बता रहा हूं। खेल के ताल्लुक से अभी तक जो मामलात है, मैंने जब दौराने तालिब इल्म जब मैं दारिस शरीफ में पढ़ता उस वक्त फतवा रज़विया में हुजूर की हदीस को मैं पढ़ा था, और आज भी हदीस मेरे हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए 3 खेल के अलावा कोई भी खेल जायज नहीं है। 3 खेल के अलावा कोई भी खेल जायज नहीं है। इस हदीस को आला हजरत ने फतवा रज़विया में भी नकल फरमाया। वो खेल क्या है? पहला जो खेल है, खाविद का अपनी बीवी के साथ खेलना, यानी दिल लगी करना। हुजूर ने जो 3 खेल खेलने की इजाजत फरमाई है, वो 3 खेल कौन सा है वो सुने, बाकी और मैं बताता हूँ। पहला जो खेल है, खाविद का अपनी बीवी के साथ खेलना, यानी दिल लगी करना। दूसरा खेल जो है, अपने घोड़े से खेलना, यानी उसकी तरबियत और सिखलाई करना। तीसरा जो है, अपनी कमान से तीर अंदाजी करना। ये 3 खेल है जिसको हुजूर ने खेलने की इजाजत फरमाई है। अब सुनिए, लूडो खेलने की इजाजत शरीयत में क्यों नहीं है? कैरम बोर्ड खेलने की इजाजत शरीयत में क्यों नहीं है? और जो खेल है, कैरम बोर्ड, वीडियो गेम्स वगैरह जितने जो खेल हैं, एक खेल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप भी सुने होंगे, चौसर एक खेल होता है। हुजूर, वो एक खेल ऐसा है, चौसर उसको बोलते हैं। वो शायद वो हम लोग जो लूडो गोटी खेलते हैं ना, उसी तरह का एक खेल है। उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चौसर खेला उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त में और सूअर के खून में डाला। अस्तगफिरुल्लाह। ये लूडो की तरह कोई खेल है, उसी तरह शतरंज बोलते हैं। हाँ, शतरंज और चौसर दोनों एक तो खेल है, उसी तरह कुछ है। शतरंज तो उसको कहते हैं जिसमें घोड़ा हाथी वगैरह जो खेल होता है। अच्छा, लूडो, कैरम बोर्ड और जो वीडियो गेम्स, जितने खेल हैं, इसको शरीयत ने मना क्यों किया है? इसको हमको समझना पड़ेगा। शरीयत ने इसलिए मना किया है कि इस खेल में मुसलमानों के लिए कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। इस्लाम ने लूडो, वीडियो गेम्स, शतरंज, कैरम बोर्ड खेलने से इसलिए रोका है कि इसमें वक्त बर्बाद होता है, और इस्लाम ने अपने मानने वालों को वक्त बर्बाद करने से रोका है। पहली वजह ये है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस्लाम ने कैरम बोर्ड, लूडो वगैरह खेलने से इसलिए मना किया कि इसमें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान ये है कि अक्सर औकात जब मुसलमान के बच्चे इसको खेलते हैं तो अक्सर नमाजें छोड़ देते हैं, फराइज छोड़ देते हैं, वाजिबात छोड़ देते हैं। इसीलिए इस्लाम ने मना किया है कि जिस खेल में कोई फायदा नहीं है उसको आप नहीं खेल सकते। हाँ, कुछ खेल ऐसा है, क्रिकेट, बॉलीवुड और फुटबॉल, बैडमिंटन वगैरह ऐसा खेल है जिसको अगर आप वर्जिश के लिए खेल रहे हैं तो उलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को निगाह में रखकर कुछ शर्त के साथ खेलने की इजाजत देते हैं, अगर आप वर्जिश के लिए खेल रहे हैं तब। वरना अगर इसमें भी आप शर्त की कैद लगा रहे हैं, लेन देन का अगर मामला है, तो फिर ये जुआ हो गया, ये खेल, फिर ये खेल तो हराम हो जाएगा। अगर सेहत के लिए क्रिकेट सत्र खुलने ना पाए, हाँ जी, कुछ शर्तों के साथ, मैंने कहा कुछ शर्तों के साथ इन खेल को खेलने की इजाजत उलमा ने फरमाया है। तो हालत रोजा में आज हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जबकि ये खेल नाजायज हराम है, और हालत रोजा में तो अशद हराम है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि जो टाइम पास आप कर रहे हैं, लूडो गोटी खेलकर, शतरंज खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर, वो टाइम पास आप कुरान पढ़कर करें, क्या ही बेहतर होता है। तो इसको समझना चाहिए, खेल का मामला ये है। तीसरी अहम बात है जी, लॉकडाउन में बहुत हमारे नौजवान हैं और बहुत जो बाहर में हैं, उनके पास वक्त गुजारने के लिए एक मोबाइल मिला हुआ है, जिसमें अभी बहुत सारे नेटवर्क ने अपना फ्री डेटा भी दिया है, या कुछ शर्त के साथ 3 महीने 4 महीने फ्री भी कर दिया है, सब लोग जानते हैं।
اب اس میں وہ لوگ رہتے ہیں. لاک ڈاؤن کو پاس کرنے کا, اس کے وقت کو پاس کرنے کا ایک واحد ذریعہ ان کے پاس موبائل ہے. تو آپ موبائل کو کس تعلق سے استعمال کرنے کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیے انعام بھائی, چاہے موبائل ہو, اسلام نے کھیل جو کھیلنے کو روکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وقت برباد ہونا. انسان کا وقت برباد ہوتا ہے, اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے. ٹائم پاس کرنے کا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. موبائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ استعمال کریں تو شریعت استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے, لیکن کھیل کا جو معاملات ہے, ایپس وغیرہ کا جو کھیل کھال کرنا, دھوکا والا معاملہ جو ہو رہا آج کل ہوتا ہے واٹس ایپ میں کہ یہ ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیجیے, اتنے پیسے مل جائیں گے, یہ کرنا, یہ کر لیجیے. ٹائم آج کل جو ہمارے نوجوان بچے پاس کر رہے ہیں وہ صرف گیم, ویڈیو گیمز کھیل کر یا پھر ایپس ادھر ادھر کر کے, جو شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں موبائل کو صحیح استعمال کیجیے, جائز ہے. جیسے انعام بھائی آپ مثال دیتے ہیں, یہ آپ کا ہاتھ ہے, اگر اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کے لیے گناہ ہے. اس ہاتھ سے کسی کو اور کوئی, یہ زبان ہے, اس زبان سے کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے, لیکن اسی ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کریں گے تو ثواب ہو جائے گا. یہی زبان ہے, اس زبان سے اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہوگا. ویسے ہی موبائل ہے, موبائل کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے, اور اگر غلط استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے. ایک آخری بات میں اور کہہ کے گزر جانا چاہوں گا انعام بھائی. جی نواز شاہ. جی جی ہاں, کچھ لوگوں نے, چونکہ ہمارے واٹس ایپ میں کچھ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں تو ہم نے سوال لکھ کے رکھا ہے. 1 منٹ میں ذرا وقت لوں گا. تو کھیل کے تعلق سے جو میں نے کہا تھا, تو میں نے مکروہ میں لکھا ان کھیلوں کو, ان چیزوں میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے, اس کو میں سوشل میڈیا میں 2 دن میں چھوڑ دوں گا. ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, میں نے لکھا کہ ویڈیو گیمز, شطرنج, کیرم بورڈ, لوڈو گوٹی, اسنوکر, بلیئرڈ, تاش, یہ تمام کھیل ناجائز و حرام ہے. اور اگر شرط لگا کر کرکٹ اور فٹ بال کھیلا جائے تو یہ بھی حرام ہے, اور ان تمام کھیل کھیلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا انعام بھائی کہ ہم کچھ مریض لوگ جو شوگر, بلڈ پریشر اور بے شمار بیماریوں کے مریض ہیں, ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کیا ان مرض کے حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو نئی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہے اور انسانوں میں جو بیماریاں آ رہی ہے, تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ شوگر ہو گیا یا بلڈ پریشر ہو گیا. جی شاید ان کے پاس کوئی فون وغیرہ آ گیا ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ہر موڑ پر آسانی کا حکم دیا ہے, آسانی فرمایا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری ہے اور ایسی بیماری ہے تو پہلے وہ کسی مسلم حکیم طبیب کے پاس جائے, اور اگر مسلم حکیم نے, کوئی مسلم حکیم ہو, طبیب ہو جو تجربہ کار ہو, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ دے کہ آپ کے اندر جو بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے یا آپ ہلاک ہو سکتے ہیں, تو اس مسلم حکیم کے تجربے کی بنیاد پر آپ اس وقت تک روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسلام آپ کو رخصت کی اجازت دیتا ہے, لیکن آپ کی صحت جیسے ہی لوٹ جائے گی آپ کو وہ چھوٹے ہوئے روزے پھر سے ادا کرنا پڑے گا. حالت روزہ میں اگر ایسی بیماری ہو گئی تو باقی اسلام نے حالت روزہ میں جو جن بیماریوں کی وجہ سے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, کچھ ہیں جیسے عورتیں ہیں, دودھ پلانے والی عورتیں ہیں, وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, اسلام نے اس کے لیے رخصت, لیکن بعد میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. حاملہ عورتیں ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہمارا وقت بچا ہوا ہے. ایک سوال محمد نظام الدین صاحب کا ایک سوال آ رہا تھا. سوال سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں, 8 منٹ کے وقت موجود ہیں. آج کا ٹاپک روزہ جیسی مسائل کا حل ہے. آپ حضرات زکوٰۃ کے تعلق سے یا نماز کے تعلق سے آج کے پروگرام میں نہ سوال کریں تو بہتر ہو.
ہاں مفتی صاحب وہ گل منجن کا مسئلہ حل فرما دیں کہ روز جی کسی صاحب کا آواز آ رہی ہے کہ گل منجن پر بھی سے گفتگو کر رہے روزے کی حالت میں دو سوال آئے ہیں گل منجن کے تعلق سے، اور کیا احتلام ہونے کی صورت میں روزے پہ کوئی نقصان ہوگا یا نہیں، یہ دو سوال روزے کے حوالے سے آئے، آپ جواب نہ تو اس جی ایسا ہے کہ حالت روزہ میں گل اور منجن کو میں اپنی تحقیق کے بنیاد پر ناقض صوم مانتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بہار شریعت پڑھتے ہوں گے تو تمباکو کو ناقض صوم کہا گیا ہے۔ اور تمباکو ہے کیا چیز؟ یہ تمباکو اور کھینی دونوں سمجھ لیجئے دونوں ایک ہی چیز ہے، تمباکو اور کھینی وغیرہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو تمباکو سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمباکو جب ہم منہ میں ڈالیں گے تو اس کے جو باریک ذرات ہے حلق میں جانے کا یقین ہے، اسی لیے تمباکو اور کھینی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رہ گئی بات گل کی، تو گل سے تو بدرجہ اولا روزہ اس لیے ٹوٹنا چاہیے کہ گل تو اسی کی قسم ہے، اور گل کے جو باریک ذرات ہے اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم منہ میں ڈالیں گے تو گل بھی حلق میں جائیں گے، اسی لیے گل سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری ہے، گل بھی ناقض صوم ہے، اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ گل لگائے بغیر کسی کا پخانہ نہیں اترتا ہے، تو علماء اجازت دیتے ہیں کہ گل کو اپنے ہاتھ پر لے کے پانی میں مل لیں اور منہ میں ڈال کر ترنت کلی کر دیں، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، جی اگر مجبوری نہیں ہے تو اسلام آپ کو کسی بھی حال میں اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مجبوری ہے تو تمباکو کی بھی یہی صورت ہونی چاہیے جی کی۔ اگر واقعی اس کے ساتھ مجبوری ہے، بول رہا ہوں اگر آپ تو پھر شرعی مجبوری ہو گئی نا۔ آپ کتاب ایک تو پڑھیے، فتویٰ مرکز تربیت افتاء، ایک کتاب اردو کی، اس میں پڑھیے گا، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی تحریر ہے، اس میں آپ پڑھیے گا تو گل کے تعلق سے شرعی مجبوری اگر ہے کہ پیخانہ نہیں اترتا ہے، واقعی بہت مجبوری ہے، تو علماء جو کچھ منٹ کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ ترنت منہ میں کر کے ترنت آپ کو کلی کر دینا ہے، کھانے کے لیے اجازت کسی نہیں دی جائے گی۔ مفتی اختر حسین علیمی صاحب کی تحقیق ہے کہ گل مفسد صوم ہے اور کرنے والے پر کفارہ لازم ہے۔ جی فتویٰ علیمیہ آپ مطالعہ کریں، مفتی اختر حسین علیمی صاحب فرماتے ہیں کہ گل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور گل کرنے والے پر کفارہ لازم ہے، قضا نہیں بلکہ کفارہ لازم ہے اس کے اوپر۔ میں نے کہا کہ واقعی اگر اس کے ساتھ ایسی مجبوری ہے، اسلام میں تو مجبوری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے، روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر واقعی اس کے ساتھ ایسی مجبوری کہ پیخانہ نہیں اترتا بغیر گل کا، تب علماء اجازت دیتے، رخصت دیتے، علماء اجازت دیتے ہیں کہ منہ میں کر ترنت کلی کرے، جیسے منہ میں آپ ڈالیں ویسے کلی کریں۔ ہم عام اجازت کی بات نہیں کر رہے ہیں، واقعی میں خود اپنی تحقیق کی بنیاد پر مانتا ہوں کہ گل اور منجن ناقض صوم ہے، میرے پاس میرے لکھے ہوئے فتاوی موجود ہیں، میں خود مانتا ہوں، لیکن علماء بڑے بڑے علماء، میری تحقیق اگر آپ سننا چاہیں گے تو میری تحقیق ہے کہ گل اور منجن ناقض صوم ہے، کسی بھی وجہ سے جائز نہیں، لیکن علماء اجازت دیتے ہیں کہ کسی کا پیخانہ نہیں اترتا، کسی کے پاس مجبوری ہے تو ترنت کر کے ترنت کلی کرنے کا حکم ہے۔ اب علماء کی کیا حکمت ہے وہ جانے۔ ایک سوال ایک سیکنڈ، آپ کے سامنے ایک اسکرین پر ایک سوال شو کر رہا ہے، اگر گل کرنے کے بعد فوری طور پر کلی کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ سوال کر رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا روزہ
क्या रोजा टूट जाता है, क्या लगा हुआ है? हाँ तो क्या लगा, अच्छा हाँ तो क्या रोजा टूट जाता है, ये फौरी तौर पर एक लाइन में इनका जवाब दे दें आप। शरई मजबूरी की बुनियाद पर जी रोजा शरई मजबूरी है, हमें तो बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि शरई मजबूरी ये है, किसी का पैखाना नहीं उतरता है गुल के बगैर, तो उसके पास मजबूरी है वो तुरंत हाथ में गुल को पानी में मल ले और वो दांत में मल के फौरन कुल्ली कर दे, यहाँ तक इजाजत है, उलमा इजाजत देते हैं, उसके आगे इजाजत नहीं है। अच्छी गुफ्तगू हुई आज हमारे एक अहम बात इनाम भाई मैं 2 मिनट में हम बात कर लेता हूँ। आजकल कुछ लोग नए मसाइल सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि मैंने इससे पहले ये मसाइल तो सुने ही नहीं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सुना नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है, पहली बात है। दूसरी बात कि आपको इतराज का हक नहीं है कि मैंने आज तक नहीं सुना, आपने पढ़ा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आप कैसे बोल रहे हैं? आपको ये हक बनता है कि आप जो मसाइल बता रहे हैं तो किस किताब से बयान फरमा रहे, उस किताब का हवाला दीजिए। हवाला का इख्तियार आपको है, और मैंने अपनी जितनी बातें बताई है वो उर्दू किताबों का हवाला मैं आपको नहीं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दुर्रे मुख्तार, फतावा शामी, हिदाया, बहरू रायक, ये सारी किताबों का हवाला मौजूद है। जिनको चाहिए जब चाहिए 8873858001 पे हवाला तलब कर सकते हैं, 7979709396 पे हवाला अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अरबी किताबों से हवाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा। वक्त हमारे पास अब नहीं है, हम चाहेंगे कि अगर कारी भाई साहब आपका नेटवर्क अगर नहीं आ रहा है तो अपनी वो गुफ्तगू का आगाज फरमाएं कि जो नमाज और इबादत के ताल्लुक से आप फरमा रहे थे। जी हेलो कारी भाई साहब, आपकी आवाज मिल रही है हम लोगों की? अगर आपका नेटवर्क आपको अगर इजाजत दे रहा है। जी जी अच्छा कारी भाई साहब, आवाज आप को मिल रही है? जी 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 आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू हो जाएं। मैं रोजे के फयूज़ व बरक़ात बयान कर रहा था। इस्लाम की हर इबादत करीम है, मगर इंसान को उसके मकाम तक जाना पड़ता है, वो आकर कर्म नहीं करती। मिसाल के तौर पर नमाजी को मस्जिद तक जाना पड़ता है, हाजी को बैतुल्लाह शरीफ तक जाना पड़ता है, और ज़कात देने वाले को फ़ुक़रा तक पहुंचना होता है। इस्लाम की तमाम इबादतें करीम है, मगर रोज़ा ऐसा करीम है कि किसी को उस वक्त उस तक जाना नहीं पड़ता, वो खुद रहमत की बारिश बनकर हर घर में बरस जाता है। माशाअल्लाह। गुनाहगारों पर बख्शिश की बारिशें कर जाता है। तो अब उस रोजे की अहमियत, उस रोजे की फजीलत निगाहों के सामने रख करके हम तमाम बिरादरान इस्लाम को हम और आप मिल करके ये पैगाम में जहाँ तक ज़्यादा इबादत और रियाजत ही करे, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि लूडो वगैरह, कैरम बोर्ड वगैरह और तरह तरह के मतलब खेल में मशगूल होकर के वक्त को बर्बाद ना करे। और जैसा कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक है कि इन्नल्लाह कान यक़ूलु अन्ना सौमा ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जी अभी आवाज आ रही है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रोजा खास मेरे लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है आपकी आवाज। कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोजा खास मेरे लिए। जी तो इसमें क्या खासियत है? नमाज भी अल्लाह ही के लिए, रुकू सुजूद हज ज़कात सब अल्लाह ही के लिए, जितनी इबादतें हैं सब अल्लाह ही के लिए। मगर अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ रोजे के लिए एक से पाक ही साबित है कि
कि रोजा मेरे लिए और उसकी जजा भी मैं ही दूंगा। जी। तो उलमाए कराम ने बयान किए हैं, उन सारी वजूहात निगाहों के सामने रख करके हम और आप सारे बिरादरान इस्लाम को भी ये पैगाम दें कि तो और तरीके करे रोजे बयान होना। नेटवर्क की खराबी की वजह से मेहमानों की आवाज कुछ साफ नहीं आ पा रही है। मैं इसके लिए माजरत तलब करूंगा। और हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैंने आज 2 शायर का इंतखाब किया था। शायद किसी दुश्वारी के तहत वो हजरात उनसे हमारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए, प्रोग्राम में ज़्यादा देर तक शामिल नहीं रह पाए, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हजरत मुफ्ती साहब का कि आज उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत उम्दा और जामे गुफ्तगू और तहकीकी मवाद में हजरात को उन्होंने नवाजा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुफ्ती साहब क़िबला की इल्म में और उनकी उम्र में जितना बरकतें अता फरमाए। हमारे साथ आमीन लाइन पर मेहदी हसन मुश्ताक साहब क़िबला हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि सारे मेहमानों की जो दुश्वारियाँ हैं वो नेटवर्क की वजह से आ रही है। नाज़रीन कराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करूँगा नाज़रीन कराम से कि मौजू के तहत प्रोग्राम किया जाता है, उससे मेहमानों को बड़ी तकलीफों के पास उनको मदद किया जाता है, उनका शिरकत किया जाता है प्रोग्राम में। लिहाजा आपको साहब आप अपना माइक अपने हेडफोन का माइक आप जी मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है। मैं नाज़रीन कराम करूँगा कि हमारे मेहमान के हवाले से सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल एक साहब ने किया था जो अधूरा रह गया, उनको बताना ज़रूरी है कि सलाम हालत रोज़ा में होने की सूरत में उससे रोज़े पे क्या खलल पड़ेगा। तो ये बात अधूरा रह जाए। हालत रोज़ा में एहतलाम होने की सूरत में क्या रोज़े पे कोई खलल पड़ता है? एक आपका सवाल था। ऐसा है कि हालत रोज़ा में अगर किसी का एहतलाम हो जाए तो रोज़े पर तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता नापाकी की वजह से जितने वक्त की आपने नमाज कज़ा की उसका गुनाह मिलेगा, रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सवाल और है सरकार, ये भी आयत फरमाते हैं आप कि आदमी रात को नापाक है और बस इतना नहीं है उसके पास तो नहा ले और सहरी कर ले, और वो सहरी करने लगा कि वो नहाने की उसकी प्रश्न नहीं कर पाई, तो क्या वैसी हालत में वो सहरी करने की नियत कर सकता है? ऐसा है कि नापाकी की हालत में सहरी भी कर सकता है, लेकिन नमाज जो छूटेगी नापाकी की हालत वजह से उसका गुनाह मिल जाएगा, गुनाह मिलेगा उसे। आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही, लेकिन मुझे मसला समझ में आ रहा है। आवाज़ आपकी हजरत नहीं आ रही मेहदी साहब, लेकिन मसला समझ में आ रहा है कि हालत नापाकी में सहरी भी कर सकता है और रोज़ा भी रख सकता है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नमाजें छूटेगी उसका गुनाह मिलेगा। एक मुसलमान को हमेशा पाक रहना चाहिए, ना जाने किस वक्त मौत आ जाए। बेशक। और जब मौत जब भी आवे तो पाकी की हालत में आवे, क्या ही बेहतर होता है। बेशक। और आज तो मजबूरी किसी के पास है नहीं कि पानी नहीं है, बस काहली और सुस्ती है। खैर मसला मैंने बता दिया।
मुफ्ती साहब क़िबला बहुत बहुत मुबारकबाद। वाकई रोज बरोज हम लोग का प्रोग्राम यूं लग रहा है कि आज ही का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। कल गुज़श्ता भी प्रोग्राम असल में खुसूसी मेहमान हमारे जो थे वो किसी बुनियाद पर ना आ सके, मगर आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से नाज़रीन ने अपने तासुर किया है बहुत बेहतर हुआ। इंशाअल्लाह हम लोग 9:30 बजे के बाद फिर से हाजिरी की सआदतें हासिल करेंगे और एक नए मौजू के तहत और नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। प्लीज मैं मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करूंगा। मेहदी हसन साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? जी, आवाज़ मिल रही है मेरी? जी, मैं मुफ्ती साहब क़िबला से अर्ज़ करूंगा कि आप माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आज, काबिले सताइश गुफ्तगू हुई। मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि फिर आप दोबारा हमारे इस स्ट्रीम यार्ड लाइफ में ज़कात के मुतालिक नित नए मसाइल जो ज़कात के ताल्लुक से हैं, इस ताल्लुक से आप कुछ नित नए मसाइल जो पैदा हो रहे हैं और हर रोज़ 2-4 मसाइल ऐसे आ जाते हैं ज़कात के ताल्लुक से जो कदीम किताबों में नहीं मिल पाता है मसला जी वजाहत के साथ, और जिसके पास जो है वो सियासी और फ़िक़ही सूझबूझ नहीं है वो जवाब भी कमा हक़्क़हू नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह ये है कि सवाल नित नए अंदाज में होता है और फ़िक़ही मसाइल के कुतुब में जो भी जवाबात है वो कदीम मसाइल के एतबार से, कदीम ज़माने के एतबार से जो मसाइल हुआ करते थे उस एतबार से। तो मैं ये चाहूँगा कि आप फिर कभी हमारे नाज़रीन को ज़कात के नित नए मसाइल के साथ आप शरीक हों। आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद का करता हूं। ये आपके स्क्रीन पर एक सवाल शो कर रहा होगा, आप उसको दांत से खून निकल जा रहा है रोजा में तो कैसा है? मैंने कहा था कि जब तक कोई चीज मनफस के जरिए जिस्म में ना चली जाए रोजा नहीं टूटेगा। दांत से खून निकले या पूरा जिस्म से खून बह जाए रोजा नहीं टूटेगा। आपके पूरे जिस्म से खून बह जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा, इसका ख्याल रखिए। जी माशाअल्लाह है कि वो जो दांत से जो खून निकल रहा है वो मालूम नहीं पड़ रहा और उस खून के कुछ कतरे हल्क में चले जाए। जी ऐसा है इनाम भाई, इस पर 1-2 मिनट में लूंगा। अगर दांत से खून निकल गया और वो खून थूक पर गालिब है और वो थूक हल्क से नीचे उतर जाए तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर कुछ थूक पर वो खून गालिब नहीं है, कम है, तो फिर रोजा टूटने की सूरत नहीं है। हल्के से नीचे वो खून, किसी भी सूरत में वो खून हल्के से नीचे नहीं उतरना चाहिए। बाकी आपके जिस्म से पूरा खून निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए बेहतर। कारी फैज साहब क़िबला फिर से आ गए हैं। उनके साथ बहुत दुश्वारियों के बावजूद भी वो बार-बार तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार तहे दिल से मैं शुक्रगुजार बहुत दुश्वारियों के साथ वो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन उनका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। मैं मेहदी साहब को इसलिए रिमूव कर दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि उनकी आवाज में बहुत कड़कड़ाहट है, उनकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ रही है। आप हो सके तो एक बार आप एयरफोन जो है एयरफोन आप निकाल करके बात करें। इनाम भाई, मुझे अफसोस इस बात पर है कि कम वक्त होने की वजह से मैंने जो मसाइल बयान किए हैं उसका हवाला नहीं पेश कर पाया अपनी अरबी किताबों से, जो मैंने किताबों का नाम गिनवाया है। लेकिन फिर भी मैं अपने नाजरीन को अपना नंबर दे दिया हूँ। हवाले की अगर ज़रूरत पड़ेगी, मैंने जिन मसाइल को बयान किया है तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके हवाला तलब कर सकते हैं, वरना मेरे पास पूरी किताब मौजूद है, अरबी की किताब। चलिए नाजरीन हमें दुआओं से नवाज रहे हैं और मैं इनकी दुआओं पर आमीन करता हूँ और बारगाह खुदावंदी
درخواست کرتا ہوں کہ مولا علماء سے نواز کے خلوص کو ہم آج اسی صرف ہم لوگ ختم ہیں. تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالکل محمد اللہ صاحب کا شکریہ میں بہت زیادہ ادا کروں گا. آج ہمارے اس وقت میں آئے اور آپ لوگوں کا شکریہ. کمنٹ آ رہا ہے لوگوں کی معلومات میں آپ نے اضافہ کیا. اللہ آپ میں آپ معلومات میں اضافہ کریں. آمین آمین. ہم لوگ جو ہے کہ ہم لوگ کی کوشش اور مزید آپ کے معلومات کی میں 2 سیکنڈ میں بات رکھوں. انشاءاللہ ایک محفل ہم لوگ کے اس کا نام ہوگا شرعی عدالت. انشاءاللہ جی کرام کو مدعو کیا جائے گا اور ایک موضوع پہ ہم انشاءاللہ ڈیبیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سب کا ادا کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں اور محسوس ہوتا ہوں میں تب تک کے ناظرین کو میں اسلامی محبت درست کرنا چاہتا ہوں. میں قاری نام قاری فیض صاحب درس نامہ شریف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا. تب تک کے لیے اجازت دیں. آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا آج ہم لوگوں نے جس طریقے سے تیرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی اوقات کے حساب سے جو مسائل اور جو باتیں ہوئی مولا اس میں اگر کسی طریقے سے غلطیاں یا خامیاں ہو گئی تو اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام غلطیوں اور خامیوں کو درگزر فرما. اور یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں آپسی کوئی پریشانی کوئی دقت ہو تو اس پریشانی کو دور عطا فرما دے. اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے اور اس مقدس مہینہ کے صدقے یہ دنیا میں جو وبا آئی ہے کرونا وائرس کی شکل میں یا اللہ اسے تو دور عطا فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اس نیک مشن کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سیدنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ انشاءاللہ فرمائش کریں گے کہ حضرت الحاج شاعر خوش فکر مبارک حسین مبارک صاحب کی بارگاہ میں ہم پھر سے عریضہ پیش کریں گے کہ آپ کو لوگ چاہ رہے ہیں پھر سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. میں دیکھ رہا ہوں کافی حضرات کا یہ کمنٹ ہے اور ان کی فرمائش ہے کہ آج الحاج مبارک حسین صاحب تو میں معذرت چاہتا ہوں. پھر ان کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کریں گے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو بہت جلد ہم ان کو اپنی اسکرین پر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.